A very good morning to all students. In the last videos of class 12 business studies, we discussed the four element of marketing mix, that is a promotion mix. You know very well, uh, before the discussing of the promotion mix, we already discussed the first three element of marketing mix, that is a product mix, price mix and place mix. And thereafter we are going to the discussion about the promotion mix. What is promotion? So promotion is a activity or the process which include all the activity which are related to the giving information to the customer of our product and services, as well as persuade them to buy their product. यानी प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू बिजनेस फर्म्स एंड मार्केटर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को शेयर करते हैं और उनको इनहेरेंट मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें. एंड इन द प्रमोशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन, so the promotion mix includes the various kind of factor which helps to the promote any kind of product and services. किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए बेसिकली कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं या कुछ टूल्स ऐसे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. द नंबर वन आउट ऑफ देम दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. यू नो वेरी वेल, एडवर्टाइजिंग इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, given the advertisement in the radios, television, magazine and newspaper. And in the last video we already discussed the feature of advertisement. What are the merit of advertising? It means what are the advantages of advertising, and number third is what are the limitation of the advertising. So after the discussing the first tool of promotion, now we will move to the second tool of promotion, the second element of the promotion mix, that is personal selling. What is personal selling? In the last video we already discussed. Personal selling refers to the face to face communication between the seller or his representative and the buyer. Generally, the salesperson of an enterprise assists and persuade the prospective buyer to buy the product. यानी पर्सनल सेलिंग एक तरह का पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें सेलर और बायर आपस में फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, और सेलर जो होता है वो बायर को इंड्यूस करता है कि वो उनके प्रोडक्ट को परचेस करें. सो यू कैन सी दैट इन योर स्क्रीन व्हाट इज़ प्रमोशन, व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग, विच आर द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स. So what is promotion, personal selling? Personal selling or salesmanship is the process of informing, assisting and persuading people to buy a product and services through the direct personal contact. यानी it is just like advertisement. Advertisement और personal selling में ज़्यादा difference नहीं होता है. Basically advertisement is a interpersonal communication, but the personal selling is a type of the direct personal communication, in which दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेल्समैनशिप. पर्सनल सेलिंग को हम लोग सेल्समैनशिप भी कहते हैं. और पर्सनल सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनको इनहेरेंट मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें. और ये सारी जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली पर्सनली कॉन्टैक्ट होती है, यानी इसमें हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं. It involves a face-to-face communication between a seller and the buyer. So you can see that on your screen कि personal selling involves face-to-face communication between a seller and the buyer. In this techniques of promotion, salesmen make oral presentation to one or more customer for the purpose of making sales. यानी इस टेक्निक में आप ये देखते हैं कि प्रमोशन की टेक्निक में सेल्समैन क्या करता है, वो अपने कस्टमर को एक या एक से अधिक कस्टमर को सेल के लिए अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है. जैसे कई सारे 10, 15 या 20, 2500 जो वॉट एवर या 1000 जैसे ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सेल्समैन आते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उनसे पर्सनल सेलिंग के थ्रू, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करते हैं.
The person who do the job of selling through the face-to-face interaction are salesperson or sales representative. यानी जो बंदा ये सेलिंग करता है, जो जॉब करता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन करता है टू द कंज्यूमर, उन्हें हम सेल्स पर्सन या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं. सो हु इज अ सेल्स पर्सन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव? द सेल्स पर्सन और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, द पर्सन who do the job of selling through the face-to-face interaction. And what is salesmanship? Salesmanship means the personal selling. Personal selling is a synonyms of the salesmanship, in which we inform, assist and persuade people to buy a product or service through direct personal contact. So this is a brief introduction of the personal selling. Now we will move to the features of the personal selling. So what are the features of the personal selling? The first feature of the personal selling, as you can see, that the personal form. It involves a direct face-to-face communication between the seller and buyer. यानी कि इसमें एक buyer होता है, seller होता है, ये आपस में बीच में communicate करते हैं directly और अपने products and जैसे seller को वो क्या करता है, अपने product and services से related information provide करता है consumer को, और consumer जो होता है उस product से और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, जैसे उसकी नीड होती है. द नंबर सेकंड इज डेवलपिंग ऑफ रिलेशनशिप. पर्सनल सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड रिलेशन, बिकॉज यू नो वेरी वेल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं. सो उनसे कोई फीडबैक लेना हो या उनसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना हो कि वो हमेशा मेरे ही प्रोडक्ट को, मेरे ही सर्विसेज को कंज्यूम करें. सो उसके लिए आपको एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की भी फैसिलिटी मिलती है. सो यू कैन सी दैट पर्सनल सेलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एज वेल एज with the help of personal selling, it helps to develop a personal long lasting relationship between the salesman and the customer. The next point is merit of personal selling. If we are talking about the merit of the personal selling, so firstly when we are talking about the advertising, you can see that in the last video advertising में कुछ limitations थी, just like a advertisement has less forceful, lack of feedback, inflexibility and low effectiveness. But personal selling remove the limitation of the advertisement. Suppose अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराती है और एडवर्टाइजमेंट से जो उसकी सेल इंक्रीज़ नहीं हुई है, जितना मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसकी 10% सेल इंक्रीज़ हुई, बट उसका ऑब्जेक्टिव था 15% सेल इंक्रीज़ होने की, तो 10% सेल तो उसकी एडवर्टाइजमेंट से इंक्रीज़ हो गई, बट जो बाकी 5% सेल अभी भी बची हुई है वो कैसे इंक्रीज़ होगी? उसके लिए आप पर्सनल सेलिंग को एज अ टूल, एज अ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज विद द पर्सनल सेलिंग वी कैन ईजली रिमूव द लिमिटेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. द फर्स्ट इज दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी. Personal selling is a very flexible thing because the salesman can adjust, change his message according to the needs of the customer. यानी इसमें क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है सेल परचेजर के साथ, बायर्स के साथ, और उनके अकॉर्डिंगली अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है. बट एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेट करती है और सारे कस्टमर के लिए सेम होती है. यानी हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन किसी भी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उन सारी इंफॉर्मेशन को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड इज डायरेक्ट फीडबैक. अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल सेल there is a direct face-to-face contact between the buyer and seller. It provide immediate feedback to the salesman. Yani when any salesman present their product and give their information related to the product, so customer से directly immediate feedback भी मिल जाता है salesman को कि यार ये product में ये कमी है, product में ये. So you can see that with the help of personal selling, salesman can adjust, change his message according to the need of the customer, as well as seller receive immediate feedback from the buyer. And number third, the minimum use wastage, because of advertisement has a less forceful, but personal selling has a more forceful, and it minimize the wastage, because there is a minimum wastage of efforts as the company decide the target customer before making any contact with them.
यानी कि विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग यहाँ पे हमें जितने भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम पर्सनली यहाँ कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं और उनको पर्सनली अपने प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कन्विंस करते हैं। बट एडवर्टाइजमेंट इज़ लेस इफेक्टिव बिकॉज एंड लेस फोर्सफुल, क्योंकि उसमें फोर्सबिलिटी नहीं रहती है, कन्विंसेंस प्रॉब्लम उतनी अच्छी नहीं रहती, इफेक्टिवनेस उतना अच्छा नहीं रहता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी पर्सनल सेलिंग, तो यहाँ एफर्ट्स जो होते हैं कंपनीज के वो कम वेस्ट होते हैं। वेस्ट होने का मतलब जो कंपनी एफर्ट कर रही है, जो मेहनत कर रही है, वो कम से कम वेस्ट होती है, ये कह सकते हैं बेसिकली। सो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग कंपनी मिनिमाइज देयर वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होता, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। बट विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग कंपनी अपने एफर्ट्स को वेस्ट होने से बचा सकती है। यानी हमें एडवर्टाइजमेंट में मेहनत करना है तो क्यों ना उससे अच्छा मेहनत पर्सनल सेलिंग की करें। So we can discuss the second topic of personal selling. Firstly, we discuss the feature of personal selling, and thereafter we discuss the importance or advantage of the personal selling. Now we will move to the role of personal selling. When we are talking about the role of the personal selling, so you can see that personal selling plays an important role in marketing goods by serving businessmen, customer and society in the following way. यानी पर्सनल सेलिंग न सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बल्कि कस्टमर एंड सोसाइटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम एज अ होल देखें कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस स्टडीज़, सो वी हैव टू नॉलेज अबाउट द इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग टू द बिजनेसमैन, बिकॉज पर्सनल सेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज द सेल, इम्पॉर्टेंट टूल टू इंक्रीज द सेल, बिकॉज it is the important for the businessman due to the following reason. कुछ reasons हैं जिसके कारण the first one is the effective promotional tool. Personal selling an effective tool to increase the sale of product. Salesman explain the merits of the product to customer, thereby including them to buy the product. यानी कि firstly ये important बात है पर्सनल सेलिंग की कि इसमें ये एक इफेक्टिव टूल माना जाता है। क्यों इफेक्टिव टूल माना जाता है? क्योंकि कंपनीज जो हैं या कह सकते हो आप लोग जो भी मार्केटर्स हैं, सेलर हैं, वो प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी या मेरिट्स अपने कस्टमर को बता सकते हैं और उनको परसुएट कर सकते हैं कि वो अपनी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए एग्री हो जाएं, कन्विंस हो जाएं। द सेकेंड एडवांटेज ऑफ द प्रमोशन दैट इज़ अ पर्सनल सेलिंग फॉर द बिजनेसमैन, दैट इज़ इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल. Personal selling efforts can be changed according to the type of the customer that the sale are attending. They may change the offer in various purchasing situation. आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जहाँ पे आप पर्सनल सेलिंग नहीं कर पाते हैं, आप एक ऐप को ओपन करते हो, ऐप ओपन करके वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको ऐड करते हो, आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ता है, या आप कोशिश करते हो कि अरे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास टाइम कम है तो यू विल परचेज सच प्रोडक्ट बाय ऑनलाइन. सो ऑनलाइन परचेस करने में कहीं ना कहीं आपके मन में जो चीज़ें उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की थी, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं. बट व्हेन वी आर परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टोर, डायरेक्टली फ्रॉम द स्टोर, सो व्हेन यू आस्क अ मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द सेलर, आप अपने सेलर से कई सारे क्वेश्चन पूछते हो, एंड जो वहाँ का सेलर होता है वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए क्या करता है, रेडी रहता है. एंड आप जैसा उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो वो आपको वैसे प्रोडक्ट दिखाता है. जैसे यू फर्स्टली आस्क टू यू कि व्हाट्स योर बजट, विच टाइप ऑफ क्वालिटी यू वांट. ये सारी चीज़ें वो जनरली पर्सनल सेलिंग में आप देखते हो. सो पर्सनल सेलिंग में जो सेलर होता है वो कस्टमर को कस्टमर के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और देयर विल बी वेरियस काइंड ऑफ परचेस सिचुएशन, यू नो वेरी वेल. किसी के पास सफिशेंट अमाउंट होता है, किसी के पास सफिशेंट बजट नहीं होता है. सो पर्सनल सेलिंग में उन सारी सिचुएशंस को हैंडल भी किया जाता है. The third one is a minimum use wastage of efforts. You can see that as compared to the other method of promotion in personal selling, the wastage of effort is minimum. ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ. ये आप खुद देख लो, अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देख लो, आप अगर सेल्स प्रमोशंस को देख लो, या फिर अगर आप पब्लिक रिलेशन को देख लो, तो उसमें से पर्सनल सेलिंग थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है,
it is a very, but apart from this it is a very important for the any companies to minimize their wastage of efforts, क्योंकि बेसिकली अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम होपलेस हो जाते हैं। बट विद द पर्सनल सेलिंग यू विल गारंटीड सक्सेस बाई 90% एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपके अगर एक सेलर जो है पर्सनल सेलिंग कर रहा है तो अगर उसके दुकान पे 100 कस्टमर आते हैं तो 90 कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ख़रीद के लेके जाते हैं। बेसिकली वो 10% में 5% ऐसे होते हैं जिनके कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं, जो 5% ऐसे होते हैं जो घूमने चले जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग यू नो वेरी वेल every businessman minimize their wastage of efforts. They believe in the personal selling. They could not believe in the advertisement. They could not believe in the sales promotion. And as well as sales promotion is a part of personal selling, क्योंकि हम वहाँ पे purchase situations के according ही उनको discount भी देते हैं. So sale promotion is a part of the advertisement and the personal selling. यानी कि sales promotion एक अलग टेक्निक नहीं मान सकते हो, वो एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग के साथ साथ चलती है। यानी बेसिकली दो ही तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम सेल करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एक पर्सनल टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो जब हम आपसे मिलते हैं, सपोज आई एम द सेलर, यू आर द बायर, तो अगर मैं आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आपको और इम्प्रेस करने के लिए, आपको परचेस के लिए मजबूर करने के लिए आप हमसे निगोशिएट भी करते हैं। निगोशिएशन इज डैट का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, दैट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव लाइक अ डिस्काउंट, लाइक अ कूपन, लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ अ बाई वन गेट वन फ्री, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड नंबर 4 इज एडवांटेज इज कस्टमर अटेंशन थ्रू पर्सनल सेलिंग। It is easy to get the attention of the customer as there is a face-to-face interaction between the salesman and customer. Yes, with the help of personal selling you can see that कि कस्टमर का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे फेस टू फेस इंट्रैक्शन करते हो। सो दैट्स वाई पर्सनल सेलिंग हैव अ ग्रेट कंज्यूमर अटेंशन इन एज कम्पेयर टू द एडवर्टाइजिंग। एंड नंबर 5 इज द लास्टिंग रिलेशनशिप. Personal selling helps to develop a personal, long-lasting relationship between the salesman and the customer. This helps to increase sales in the long run. Yes, basically जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, न्यू कस्टमर, जैसे आपकी शॉप पे आया, आप उसके घर पे गए, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हो, घर पे गए, अपने प्रोडक्ट को सेल किया। सो जब वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो ही और सी बिकम्स योर रेगुलर कस्टमर, या वो आपके शॉप पे डेली आते हैं या फिर आप उनके घर पे मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज जाते हैं, एंड देयर आफ्टर यू सेल देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जैसे वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी रख लेते हैं कि अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आई विल कॉन्टैक्ट विथ यू। सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग एवरी सेलर क्रिएट अ लास्टिंग रिलेशनशिप with the customer. And as well as the six advantages, that is personal rapport with the customer increase the competitive strength of the business. Personal rapport with the customer increases the, यानी आप कस्टमर के साथ पर्सनल लेवल पे रैपो करते हो, मतलब टॉकिंग करते हो, कम्युनिकेट करते हो, जिससे कंपनी का या बिजनेस का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यानी इस पूरे कंपटीशन में, हाई कंपटीशन में, यू कैन सी डैट कहीं ना कहीं बिजनेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। यानी वो दूसरे फर्म्स के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ ईजिली कम्पीट कर सकता है, क्योंकि ही बिलीव डैट कि दिस कस्टमर इज़ विद दिस बिजनेस। यानी ये जो कस्टमर है ये मेरे साथ है, ये कस्टमर मेरे साथ नहीं है, तो वो पहले से श्योर रहता है कि ये कस्टमर तो हमारा जाएगा नहीं। एंड नंबर 7 इज इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज. Personal selling plays an important role in introducing the new product and persuading the customer to buy it. Yes, अगर हम पर्सनल सेलिंग की वेरी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दैट थिंग कि पर्सनल सेलिंग इज़ अ वेपन फॉर द न्यू प्रोडक्ट. Because when we are talking about the new product, you can see the various hoardings, various advertisement on the TVs, on the newspaper, on the magazine. But when we are talking about the sales maximization, so sales maximization is truly based on the personal selling, because
without the personal selling any product cannot be success in the initial time. अगर कोई नया नया प्रोडक्ट मुझे आज मार्केट में लॉन्च करता है तो उसके लिए मुझे पर्सनल सेलिंग को ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, बट पर्सनल सेलिंग इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. हम अपने क्योंकि जनरली कई लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एंड उनके पास ये टाइम भी नहीं है कि वो बैठ के एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में हमारे एडवर्टाइजमेंट देखें. वो न्यूज़पेपर और टीवी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको अपना फेवरेट शोज़ देखने हैं, सीरियल्स देखने हैं, अपनी फेवरेट न्यूज़ चैनल्स देखते हैं. सो उनको मेरे एडवर्टाइजमेंट देखने का फ़ायदा नहीं है. तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम पर्सनल सेलिंग इंड्यूस कर सकते हैं, उनको सेल्स प्रमोशन यूज़ कर सकते हैं लाइक सैम्पल्स के थ्रू, लाइक अ डिस्काउंट के थ्रू. सो उनको हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो पर्सनल सेलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग द कस्टमर टू बाई इट. एंड नंबर 8 is linked with customer. Salesmen play persuasive role, service role and informative role thereby linking the firm to the consumer. Yes, with the help of personal selling, salesmen create a good relation with the buyers. एंड वो 3 तरह के रोल वहाँ पे पे करता है. जैसे परसुएसिव रोल मतलब उनको परसुएट करना, उनको इनहेरेंट मोटिवेट करना कि हमारे प्रोडक्ट को परचेस करो. नंबर 2 सर्विस रोल, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो दे विल क्लैरिफाई फ्रॉम द सेल्समैन. एंड नंबर 3 इज़ अ इन्फॉर्मेटिव रोल, यानी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, मेरिट, डिमेरिट, कॉजन्स, प्रिकॉशंस एज वेल एज द अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो सेल्समैन से कांटेक्ट करते हैं. सो यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ द पर्सनल सेलिंग every company or business create a good relation with the customer because salesmen play persuasive role, service role and informative role with the customer. और जो हमारा सेल्समैन है और कस्टमर है दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है. अगर कस्टमर को कोई सेल्समैन की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड है तो वो उस पर्टिकुलरली सेल्समैन से क्या करेगा, अदर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी प्रॉब्लम है तो वो लेगा, उससे क्लैरिफाई करेगा कि अरे मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, आप बताओ कि इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है. सो दे विल परसुएट द प्रोडक्ट, परसुएट टू बाई द आवर प्रोडक्ट. वो फिर कहेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा, आप मेरा प्रोडक्ट यूज़ करो. क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, दैट्स वाई ही विल आस्किंग विथ यू, ask to you their problem. So you can see that this personal selling is a very important weapon for the businessman because most of the successful businessmen, successful product create their history, that is a sales maximization with the help of personal selling. Without the personal selling you cannot imagine the any product reach the top sales in the market. So in the second element of the promotion mix you can see that the first element of promotion mix is the advertisement, and thereafter we discuss the second element of the promotion mix, that is a personal selling. In this topic firstly we discussed what is personal selling, what are the feature of the personal selling, and thereafter we discussed there are basically 2 feature of the personal selling, personal form and development of relationship. And thereafter we discussed the merit of personal selling. There are 3 merits of the personal selling like flexibility, direct feedback and minimum wastage. As well as we discussed the role of personal selling for the businessman because we study the business studies. And we can see that the various important for the businessman of personal selling, that is effective promotional tool, flexible tool, minimum wastage of efforts, customer attention, lasting relation, personal rapport with the customer, role in introduction stage of product and link with customer. So after discussing this topic, now we will move to the third element of the promotion mix, that is a sales promotion.
इन द बिगनिंग वीडियोज़, स्टार्टिंग के वीडियोज़ में वी ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू. Sales promotion is a very important tool for the promotion mix, because एडवर्टाइजमेंट की बात करें या पर्सनल सेलिंग की बात करें, इट इज़ अ मोड ऑफ द सेल. यानी सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए या तो मैं पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और या फिर डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन लोगों से कांटेक्ट करते हैं. बट द सेल्स प्रमोशन इज़ अ टेक्निक्स, और it is include the short term incentive by which we induce the customer to buy their product. So we can say that what is sales promotion? First of all, we discussed. Sales promotion refers to all the immediate activities which are undertaken for the purpose of increasing immediate sales. Yani you can see that with the help of sales promotion we can increase the sale immediate. यानी सेल्स प्रमोशन में का फर्स्ट पर्पज़ ये होता है कि हमें अपना सेल्स को इमीडिएट इंक्रीज़ करना है. दीज एक्टिविटीज़ मेनली इंक्लूड लोअरिंग द प्राइस. इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? फर्स्ट ये आता है हम अपने प्राइस को कम करें. डिस्ट्रीब्यूटिंग द कूपन्स, अपने कस्टमर को कूपन सर्व करें. कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट, गिविंग अवे ऑफ गिफ्ट्स. सो यू कैन सी दैट sales promotion refers to all the activities which are undertaken for the purpose of increasing immediate sale. यानी सेल्स प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सेलर क्या करता है? अपनी सेल्स को इमीडिएट इंक्रीज करने के लिए कई एक्टिविटी परफॉर्म करता है. इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है? प्राइस को कम करना, कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराना, एंड फ्री गिफ्ट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स सर्व करना. Sales promotion refers to the short-term incentive to boost sales in a short-term period. It supplements other promotional efforts such as advertisement, personal selling, and publicity. So you can see that sales promotion एक ऐसा short-term incentive है. It is a short-term incentive जिससे हम अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं, यानी इंक्रीज़ करते हैं. जस्ट लाइक अ इंजेक्शन. जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको एक बीमारी दूर हो जाती है, वैसे अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स डिक्लाइन हो रही है, सेल्स इफेक्टिवली बढ़ नहीं रही है काफ़ी दिनों से, तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन का यूज़ करते हैं. और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. यू कैन सी दैट कि ऑफर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट एंड इन विद दिस डेट. सो और इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फॉर अदर प्रमोशनल एफर्ट्स. यानी ये एडवर्टाइजमेंट के साथ, पर्सनल सेलिंग के साथ, पब्लिसिटी के साथ एज अ सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है. यानी जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं, तो हम इन सारे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा एडवर्टाइजमेंट और इफेक्टिव हो, पर्सनल सेलिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो, पब्लिसिटी और ज़्यादा अच्छी बेटर हो. कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टू डिज़ाइन स्पेसिफिकली टू प्रमोट सेल्स एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स. कंपनीज क्या करती है? अपने डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट तरीके का प्रमोशनल टूल यूज़ करती है. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर द कस्टमर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द कस्टमर, तो कस्टमर के लिए कंपनी किस तरह के प्रमोशनल टूल यूज़ करती है? सेल्स प्रमोशनल टूल यूज़ करती है. दैट इज़ थ्रू फ्री सैम्पल, उनको फ्री में सैम्पल देती है. डिस्काउंट, उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है. कॉन्टेस्ट, उनके लिए कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइज करती है. और कॉन्टेस्ट में जो विनर होता है उसको भी क्या करती है? यस, अवार्ड देती है या उनको कुछ फ्री गिफ्ट्स हैम्पर प्रोवाइड किए जाते हैं. नंबर सेकंड, ट्रेडर्स और मिडिलमैन. जो ट्रेडर्स हैं या मिडिलमैन है, लाइक अ होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट्स, थ्रू कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, डीलर डिस्काउंट, इंसेंटिव एंड कॉन्टेस्ट. उनके लिए भी क्या करता है? उनके एडवर्टाइजमेंट्स में हेल्प करते हैं कि उनको ज़्यादा सामान मिले, ज़्यादा प्रोडक्ट मिले ताकि वो गुड्स को सेल करें. उनको डीलर डिस्काउंट मिलता है. डीलर डिस्काउंट में यू नो वेरी वेल, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए होलसेलर, रिटेलर और एजेंट्स को कुछ कमीशन मिलता है जिसे हम डीलर डिस्काउंट कहते हैं. जैसे अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट को हमें 10 रुपीज़ में सोल्ड करना है तो होलसेलर को वही सामान 7 रुपये में या 6 रुपये में मिलेगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चर की कॉस्ट क्या है ये जल्दी डिस्क्लोज नहीं होती. 6 रुपये में मिलेगा. अब वो 6 रुपये की चीज़ हो रिटेलर को कितने में देगा? 8 रुपये में. तो उसने कितना कमाया? 2 रुपये कमा लिया. और फिर 8 रुपये की चीज़ वो कस्टमर को कितने में बेचेगा? 10 रुपये में. सो वो उसको भी कितना प्रॉफिट मिला? 2 रुपये.
एज वेल एज इंसेंटिव, उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलते हैं और उनके लिए भी कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उनको भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड फॉर द सेल्स पर्सन बोनस, स्पेशल ऑफर एंड कॉन्टेस्ट, उनको बोनस दिया जाता है उनके सेल्स के अकॉर्डिंग। जो सेल्समैन है उनको कंपनी क्या करती है, उनको बोनस देती है। जैसे अगर उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी है तो उनको बोनस प्रोवाइड किया जाता है, उनको स्पेशल ऑफर दिए जाते हैं, जैसे कि उनको हॉलीडे पे घूमने के लिए कहीं भेजा जाता है, उनको मूवी टिकट्स मिल जाते हैं, कहीं किसी होटल में डिनर करने के लिए उनको मिल जाता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स and such kind of short-term incentive provided by the company to promote their product and services for the customer, middleman and sales person also। यानी कि जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं होती हैं। द होल सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ conducted for the customer as well as for the middleman like a wholesaler, retailer and agents as well as for the salesman, जिससे कि वो सब अपने अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने के लिए, सेल्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करें, एफर्ट्स करते रहें। सो यू कैन सी दैट टुडे वी कंप्लीटेड, फर्स्टली वी कंप्लीटेड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स, दैट इज़ अ पर्सनल सेलिंग, एंड देयर आफ्टर वी डिस्कस्ड द few important points related to the third element of the promotion mix, that is the sales promotion. And we can see that sales promotion includes the activity like lowering the price, distributing the coupon, conducting contest and giving away as a gift for the purpose of the increasing immediate sales.